Good morning, everyone. Yes, am I audible? Okay. So, in last lecture, we have started with the topic that is the last topic of first unit, computer networks. We have started, in which we have been seeing some of the different devices which we use, or components which we use for what we can call it as for computer networking, as well as what we can say is that is about the communication purpose. So meanwhile, in last lecture we have seen what are the important components of communication. That also we have seen. Even we have started with the computer networks advantages. Then some of the important components we have seen, such as NIC, that is network interface card, we have seen. Then MAC address क्या होता है ये देखा, modem, multiplexers, and then the important thing that is about inter network processors. So some of the important inter-network processors we have seen, such as hub, switches, routers, repeaters, bridges, and gateways. So till this particular part we have reached in last lecture. Now in today's lecture we will talk about telecommunication media. Okay. So just let me start with the one of the PPT, so it will be helpful for you to understand what I am talking about. So here we will talk about the transmission media. Okay. Now, as we all know, in last lecture also we have seen that transmission media will be a physical layer, or it will act as what we can say important component for message passing. So whenever we want to pass the message from one place to another place, or from sender to receiver, there is always a requirement of a medium for message transmission. So if a medium is not there, you can see there two types of medium they have given on the screen. Also you can see a cable or air. So इसका मतलब क्या है? That is the meaning of this is two types of transmission media will be there. एक, that is थ्रू केबल, दैट इज वायर्ड टेक्नोलॉजी, वायर के थ्रू आप मैसेज पास करोगे. एंड दूसरा है थ्रू एयर, दैट मीन्स वायरलेस रहेगा. ओके. So you can see here, on the basis of this particular concept, you can see there is a division or categories of transmission media. The first one is that is guided media, उसी को हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया. एंड दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, दैट इज वायरलेस. Okay. Now in guided media, three types of wired media basically we use for telecommunication. Whenever we want to send a message, or whenever we are going to talk, that is ऑडियो या वीडियो, ऐसे मैसेजेस जब आप ओवर द इंटरनेट व्हेन वी सेंड, then definitely these three types of wires we can use for transmitting a message from sender to receiver. Otherwise you can have the unguided media also, that is about the wireless, उसमें वायर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो वायर की ज़रूरत नहीं, दैट मीन्स आपको तो समझा ही रहेगा कि वाईफाई इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच वी यूज़, दैट इज़ वायरलेस, उसमें वायर है ही नहीं. ठीक है. रेडियो वेव्स विच वी यूज़. ओके. सिमिलरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इसमें वायर का ज़रूरत होता ही नहीं है. ठीक है. एट द एंड व्हाट वी कैन कॉल इट एज कि जब फिजिकल कनेक्टिविटी का बात आता है, तो मल्टीपल टाइम्स वी कैन सी दैट कि देयर इज़ अ नीड ऑफ गाइडेड मीडिया, दैट इज़ वायर का ज़रूरत लगता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो जाके डिवाइसेस को एक दूसरे से अटैच करने के लिए वी डू नीड अ गाइडेड मीडिया. बट इन द केस ऑफ व्हाट वी कैन कॉल इट एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट से जो डिवाइस तक या एंटीना तक जो मैसेज ट्रांसमिट होता है,
उसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। एंड देन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब ट्रांसमिशन हो रहा है से इन लोकल एरिया नेटवर्क, देन उसको हम बोल सकते हैं दैट इज गाइडेड मीडिया, जहाँ पे वायर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। सो on basis of this particular scenario, two types of categories are there, that is about the guided media and unguided media. Okay, अब guided media में as you can see three types are there, that is twisted pair, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। अब हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, हर एक के अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। एंड गाइडेड अनगाइडेड इज देयर, दैट इज अबाउट द वायरलेस। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, let's start with the first one, that is about the guided media. Now guided transmission media basically uses a cabling system that guides the data signals along the specific path. So the data signals are bound by the cabling system. अब उसमें जो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हम लोग देखेंगे, दैट इज अबाउट से ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। नाउ the first one, as you can see on the screen also, this is the example of twisted pair. So why the name is given twisted pair? So normally it consists of four pairs of wires. I hope मेरे यहाँ पे लाइट गया है, so now I won't be able to present the screen. अब ये थोड़े टाइम में आई गेस ये स्क्रीन जो प्रेजेंट किया है वो जाएगा। So I cannot do anything right now. So जैसे ही लाइट आता है वैसे मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, तब तक वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। आई होप आपको आवाज़ तो आ रहा है ना क्लियर? ओके, सो अभी आई गेस तो लाइट आने दो, लाइट जैसे आएगा वैसे मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तब तक वी विल डिस्कस आउट विद दिस पर्टिकुलर गाइडेड मीडिया का कंसेप्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। सो नॉर्मली इट कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर्स ऑफ वायर्स एंड इंडिविजुअल पेयर्स हैव टू वायर्स। जो अभी आपने डायग्राम में देखा था, अभी आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। यस, लाइट फिर से आ चुका है, तो लैपटॉप स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट। सो जो डायग्राम आपने देखा था उस डायग्राम के हिसाब से आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन दिस ट्विस्टेड पेयर केबलिंग यहाँ पे दो दो वायर्स का पेयरिंग किया जाता है, एंड दे आर these two wires are basically separated by insulated plastic material. एंड एज यू कैन सी ऑन दैट पर्टिकुलर डायग्राम, आपने जो डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा रहेगा वो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट किए जाते हैं। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज गिवन एज अ ट्विस्टेड पेयर केबल. So these two wires, these two individual pairs will be twisted around each other and bound together in the layer of plastic. अब ये ट्विस्टेड का कंसेप्ट है ना, मैं आपको एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ इसका, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मीडिया इन टर्म्स ऑफ दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क. सो कंप्यूटर रिलेटेड जो वायर्स होते हैं ना उनका मैं बात कर रहा हूँ. अब इसका यहाँ पे ना मतलब हम लोग जो नॉर्मली जो वायर्स यूज़ करते हैं ना वहाँ पे आप उसको उसका एग्जांपल नहीं दे सकते. बट इफ़ एनी वन ऑफ यू नो दैट पर्टिकुलर केबल जहाँ पे RJ45 कनेक्टर इज़ देयर आपके कंप्यूटर में, जब आप नेटवर्क कनेक्शन करते हो आपके कंप्यूटर में CPU में जो एक वायर जाता है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपने इंटरनेट लिया है तो उसका जो वायर जाता है तो उस वायर का जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के अंदर जो वायर्स होते हैं ना, दोज पर्टिकुलर वायर्स आर नोन एज अ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग. सो अभी बहुत सारे जन को जिनको मालूम नहीं है या जिन्होंने कभी देखा नहीं है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट बिकॉज यू डोंट नो इवन दैट पार्ट. बट अभी आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ, लेकिन जस्ट अगर आपने कभी तो देखा रहेगा, आपको मालूम रहेगा कि CPU में एक इंटरनेट के लिए एक केबल होता है
या फिर आपने मॉडर्म एंड ऑल ऐसे भी कुछ देखा रहेगा, जिसके अंदर जो केबल घुसता है, जो जहाँ पे ना एक प्लास्टिक का कनेक्टर होता है, आपने देखा रहेगा उस वायर के आगे एक कनेक्टर होता है, एंड वो कनेक्टर हम लोग उसमें डालते हैं। सिमिलरली ओके, आपको आई गेस ये तो एक कंसेप्ट मालूम मालूम रहेगा मे बी, कौन सा अपना ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन, टेलीफोन का तो कंसेप्ट मालूम रहेगा सबको बेसिकली। सो जहाँ पे टेलीफोन लाइंस आपने यूज़ किया था, तो टेलीफोन के लिए देखो कैसे वो एक वायर रहता है जो अटैच किया जाता है, तो आगे एक देखो कनेक्टर होता है प्लास्टिक का। नाउ इन सेम वे वैसे ही एक कनेक्टर होता है, दैट पर्टिकुलर कनेक्टर जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइदर RJ45 और RJ11 कनेक्टर। अब ये डिपेंड्स है, ये जो नाम दिए हैं वो नाम अलग अलग है, बिकॉज आरजे, पहले तो आरजे का मतलब बताता हूँ। इतना याद रखो, कभी भी अगर कोई पूछेगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में या फिर कंप्यूटर्स को इंटरनेट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो वायर के आगे जो प्लास्टिक मटेरियल होता है एंड जो कनेक्टर होता है, उसका नाम क्या, ये क्या होता है, आपको अगर कोई पूछेगा तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज। सो जस्ट कीप इन माइंड, उसको बोला जाता है आरजे, एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वायर्स उसको अलग अलग नाम है। इफ़ 2 पेयर केबल्स आर देयर, देन उसको बोला जाता है RJ11 कनेक्टर, एंड 4 पेयर्स का केबल अगर रहेगा वहाँ पे, तो उसको बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। ओके, नाउ RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, ये उसको बोला जाता है। ये आपके आपको बुक में भी मिलेगा, दिखाई देगा ये सब कुछ। जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, नाउ द थिंग इज, इन दिस ट्विस्टेड पेयर केबलिंग, यहाँ पे ऑब्वियसली वी यूज़ प्लास्टिक मटेरियल एज ए इंसुलेटर, ठीक है। बट अब इसमें भी आगे 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है दैट इज़ UTP, दैट इज़ अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड दूसरा एक आता है दैट इज़ STP, दैट इज़ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब UTP क्या है, STP क्या है, तो नाम से ही पता चलेगा। UTP इज दैट इज यहाँ पे अनशिल्ड, मतलब ये जो वायर है, इस वायर में और एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग नहीं होता, सिक्योरिटी पर्पस, सेफ्टी पर्पस, एक एक्स्ट्रा शील्ड नहीं होता। सो सिर्फ जो प्लास्टिक कोटिंग है उतना ही कोटिंग उस कॉपर वायर पे रहेगा। सो इट विल बी लाइक कि वो वायर जो है ना, एक्चुअल वायर देखो, सिग्नल जो पास करने वाला वायर होता है ना, वो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर होता है। आप घर का कोई भी वायर ले लो, सिंपल अपना यार इसका वायर ले लो, कौन सा आप हेडफोन यूज़ करते हो उसका वायर ले लो। आपके घर पे ये रहेगा, व्हाट वी कैन से, बल्ब का जो वायर रहता है, वो तो आपने देखा रहेगा, रेड कलर का वायर होता है बल्ब या आपने ट्यूबलाइट को, जो देखो एक के अंदर एक ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, 2 वायर्स होते हैं बेसिकली वो। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक मटेरियल होता है ऊपर, एंड प्लास्टिक मटेरियल के अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज़ एक्चुअली अ कॉपर वायर, जो आपका सिग्नल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पास करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन ट्विस्टेड पेयर 2 टाइप्स ऑफ सिनारियोज दे हैव गिवन, दैट इज एक तो UTP होता है दैट इज अनशिल्डेड, जहाँ पे ओनली प्लास्टिक वायर विल बी देयर एज अ कोटिंग, एंड उसके अंदर आपका मेन वायर होता है। सो इट विल बी सब्जेक्ट टू से व्हाट वी कैन से डेटा लॉस। क्यों? क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी दिया नहीं है ना, एक ही कवरिंग है, तो इजीली आप उसको कट भी कर सकते हो, या ब्लेड से या किसी से भी उसको कट कर सकते हो। एंड अगर कट हुआ तो उसके अंदर का जो वायर है वो भी कट होने के चांसेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी आप सिग्नल्स पास कर रहे हो वो मे बी वो सिग्नल्स में व्हाट वी कैन से एरर्स आ सकते हैं या डेटा लॉस हो सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम होता है इन केस ऑफ UTP। Now, if I talk about STP, so obviously in this particular case, a twisted pair wire is enclosed in a metal case. तो एक ऊपर आउटर मेटल कवरिंग होता है। एक मेटल कवरिंग रहेगा, उसके अंदर वो प्लास्टिक कोटिंग रहेगा, एंड उसके अंदर वो एक वायर रहेगा। जैसे ही लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं आपको उसका ना डायग्राम दिखाऊंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इज
कि वो जो वायर है, जो एक्चुअल कॉपर वायर है, उसको ना एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं शील्ड। और एक शील्ड डाल दिया, एंड हेंस इट इज नोन एज एस टी पी, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. So these two types of what we can say twisted pair cables are available. So just wait for 2 minutes. मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको पहले वो डायग्राम ही दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द फर्दर मीडियाज. जस्ट वेट. Yes, 7143. You want to ask anything? हैंड रेस किया है आपने. Okay. Okay, just wait. Let me just start with the. ओके, अभी मैं अनाउंस कर देता हूँ, टुमारो यू विल बी हैविंग टेस्ट. मैं उसका मैसेज आज डाल दूंगा ग्रुप पे, सो कीप इन माइंड. ओके, सो आई गेस आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी. ओके, so as you can see, we were talking about this twisted pair wires. As you can see, this particular wires comprises of two separate insulated copper wires, so which are twisted together and run in parallel. So applications, so कहाँ कहाँ पे हम लोग ये twisted pair wires use करते हैं.
सो इन टेलीफोन लाइंस, जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था टेलीफोन लाइंस का, ट्रेडिशनल telephones which we use, so that telephone lines can be a best example of twisted pair. Then DSL is there, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो वायर्स आप यूज़ करते हो, दैट पर्टिकुलर पार्ट जस्ट आई विल शो यू द slide show of this so that you can get the idea of those particular wires. So you can see twisted pair. Now yes, now you can see this is the actual diagram of twisted pair wire. Now by looking at this particular diagram, I hope so you will get the concept of what are the twisted pair wires and these two types of wires, that is unshielded twisted pair and shielded twisted pair. So as you can see on the left hand side, the example is given for unshielded twisted pair, जिसमें आप देख सकते हो one outer jacket is there which is of say insulator, that is plastic material, and जिसके अंदर आप देखोगे तो वायर्स आर देयर, बट वो वायर्स कैसे है देखो, दो दो वायर का कॉम्बिनेशन करके वहाँ पे क्या किया है, उनको ट्विस्ट किया है एक दूसरे के अंदर, एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायर इज नोन एज अ ट्विस्टेड पेयर. आई होप ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझा रहेगा ये वायर को ट्विस्टेड पेयर वायर क्यों बोलते हैं. यस, एम आई राइट? बोलो जल्दी. So this is the basic diagram of what we can call it as twisted pair. Now multiple wires you can insert inside a single outer jacket, there is no problem or there is no as such. Basically दो टाइप्स होते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बोला कि RJ11 जहाँ पे दो वायर्स का दो केबल्स का ट्विस्टिंग होता है, एंड RJ45 इज़ देयर जहाँ पे फोर वायर्स का ट्विस्टिंग किया जाता है. ओके अब ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो, दैट इज नोन एज अनशील्डेड, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग इज नॉट देयर. येस, आउटर जैकेट इज देयर बट एक्स्ट्रा शील्ड इज नॉट देयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शेल इज नॉट देयर. डायरेक्टली आप देख सकते हो आउटर जैकेट इज नॉर्मली अ इंसुलेटर, सो उसके नीचे डायरेक्टली वायर इज देयर. So if we can actually easily cut that outer jacket, and outer jacket easily cut होने के बाद directly these particular wires will expose to the environmental condition. एंड फिर ये यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर के वायर्स अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर भी छोटा सा प्लास्टिक कवरिंग है, तो देर इज अ ह्यूज रिस्क दैट दीज पर्टिकुलर वायर्स गेट्स व्हाट वी कैन से अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो देर विल बी अ चांसेस ऑफ डेटा लॉस. सिग्नल्स आगे पास नहीं होंगे, अगर कहाँ पे कट हुआ तो लॉस हो सकता है, लीकेज हो सकता है. सो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज देयर, विल ऑलवेज बी देयर इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर. एंड उसी जगह पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो वहाँ पे देखो येस आउटर जैकेट इज देयर, बट अलॉन्ग विद दैट आउटर जैकेट वन मोर शील्ड इज देयर, दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ मेटल शील्ड, एंड उसके अंदर the twisted pair wirings are there. So you can see twisted pair wires है, देन और एक मेटल कवरिंग है, एंड उसके ऊपर वन मोर आउटर, तो सो दैट तो आउटर जैकेट अगर कट भी होता है या कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो भी उसके नीचे अ मेटल कवरिंग इज देयर विच विल प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर वायर्स. So these are the what we can say basic examples and concepts of twisted pair, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे, यूटीपी एंड एसटीपी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेज? सो एडवांटेजेस आर दैट इज दे कैन कैरी बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. येस ऑफ कोर्स दे आर लिस्ट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स. जो बाकी के केबल हमने मीडिया देखे टाइप्स देखने वाले हैं और आगे जाके, तो उनसे सबसे चीपेस्ट है, सबसे कम महंगा है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, एंड बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू टर्मिनेट है. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है ये. अगर ये वायरिंग करना है, इसका यूज़ करना है, तो ये कोई भी इजीली समझ सकता है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? सो डिसएडवांटेज है यहाँ पे, दैट इज़ जो हमने बात किया, दैट इज़ अबाउट बिकॉज ऑफ दैट आउटर कवरिंग. So very poor security is there, and because of that it is relatively easy to tap, that is leakage easily हो सकता है.
इवन इसका अगर आप साइज़ देखोगे, दो डायग्राम में देखने से लगता है कि अरे यार बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है इसका। जब आप एक्चुअल इसका फिजिकली ये वायर जब आप देखोगे ना, यू विल बी अमेज दैट दिस पर्टिकुलर वायर्स आर वेरी थिन इन साइज एंड दे आर लाइकली टू ब्रेक इजीली। आप हाथ में भी पकड़ के खींचोगे ना तो ये वायर टूट सकता है। सो इतने छोटे वायर्स होते हैं एंड यू माइट हैव सीन दिस पर्टिकुलर वायर्स। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर सीपीयू में यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो वायर आप यूज़ करते हो, तो जहाँ पे वो कनेक्टर जब आप सीपीयू में यूज़ करते हो ना, RJ45 कनेक्टर लगाते हो, तो उस कनेक्टर के अंदर वो वायर्स आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वायर। तो that particular wire is I am talking about, that is known as a twisted pair wire. Okay, so these are some of the advantages and disadvantages of twisted pair. Next we will move to the next one, that is about the coaxial cable. Now as you can see on the screen only, coaxial cable diagram आपको properly दिख रहा है. So you can see the term coaxial refers to the inner conductor and the outer shield sharing a geometric axis. So this type of transmission media is used to carry high frequency electrical signals with low losses. अब ये केबल जो है ना, ये आप आपके घर पे अभी भी जाके देख सकते हो. व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके घर पे ऑब्वियसली केबल तो रहेगा, है ना, टीवी है, वहाँ पे सेट टॉप बॉक्स रहेगा, अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट किया रहेगा वायर केबल के लिए, केबल टीवी के लिए, है ना. तो वो जो केबल है, जो सेट टॉप बॉक्स के पीछे आपने जो केबल लगाया है ना, व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो टू दैट सेट टॉप बॉक्स एंड पीछे का जो वायर है ना वो निकालो. वो वायर निकाल के जो वायर आपको दिखाई देगा, दैट इज नोन एज अ कोएक्सियल केबल. एंड वो आपको ऐसे ही कुछ दिखाई देगा जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. यस, ऑब्वियसली ये बाकी का नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो वायर आपको कट करना पड़ेगा. सो व्हाट यू कैन डू, इफ़ यू वांट टू सी दिस टाइप ऑफ वायर, आप सेट टॉप बॉक्स से वायर निकाल लो एंड फिर उसको कट कर दो. तो देखो, अभी मत करना नहीं तो घर पे मार पड़ेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जस्ट ऐसा कुछ अगर आपको वायर दिखाई दिया, केबल का वायर या टीवी एंटीना के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, सो उस वायर को अगर आपको ऐसा ही वायर मिला तो उसको आप चेक कर सकते हो. यू कैन सी इन सच वायर, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर वायर्स आर नोन एज कोएक्सियल केबल, जिसमें आप देख सकते हो जो एक्चुअल जो वायर है, एक्चुअल जो वायर जो सिग्नल कैरी आउट करने वाला है, वो आप देख सकते हो एकदम फार एंड राइट हैंड साइड में. देखो एक छोटा सा वायर दिख रहा है, दैट इज सेंटर कंडक्टर जो जहाँ पे लिखा है. सो वो एक्चुअल वायर है जो आपका क्या करने वाला है, सिग्नल पास करने वाला है. तो वो देखो कितने अंदर है. उसके ऊपर देखो वन प्लास्टिक कवरिंग इज देयर, थिक प्लास्टिक कवरिंग इज देयर. उसके ऊपर देखो फॉइल शील्ड इज देयर, उसके ऊपर ब्रेडेड शील्ड इज देयर एंड देन उसके ऊपर आउटर जैकेट इज देयर. तो यू कैन सी, तो जो एक्चुअल कंडक्टर जो है, जो आपका सिग्नल पास करने वाला है, उसको कितना प्रोटेक्टिव शील्ड है, 1 2 3 एंड 4. सो एज यू कैन सी, आउटर जैकेट अगर किसी कारण से टूट भी गया, कट हो गया या एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण कुछ खराब हो गया, तो भी और 3 शील्ड्स आर देयर फॉर प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंडक्टर विच इज गोइंग टू पास आवर सिग्नल. एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर इसके एडवांटेज अगर आप देखोगे तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, दैट इज़ इसमें व्हाट वी कैन से, जो स्पीड एक है एंड डेटा लॉस जो है वो कम है. स्पीड, ये स्पीड इज़ हायर एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, दैट इज सिग्नल पासिंग का स्पीड. But yes, less data loss is there because high protective measures we have implemented. Again, it is very easy to install, not expensive at all, ज़्यादा expensive नहीं है. But yes, obviously higher cost है as compared to twisted pair. एंड केबल्स, ये जो केबल्स है ये भी इजीली डैमेज हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इतना शील्ड है तो डैमेज नहीं होगा, नहीं. अगर जिसको डैमेज करना है तो आप कुछ भी करो. देखो एक छुरी लेके आओगे, एक ब्लेड लेके आओगे एंड उसको कट करोगे तो वो तो इजीली कट होने ही वाला है ना. ओके, सो
बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर हम कंपेयर करेंगे इस वायर को ट्विस्टेड केयर केबल के साथ, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, देन डेफिनेटली यू कैन सी द थिकनेस। इस वायर का थिकनेस जो है ना वो ट्विस्टेड पेयर से एज कंपेयर अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। सो ट्विस्टेड पेयर वायर तो हाथ में पकड़ के आप खींचोगे तो भी टूट सकते हैं, इतने थिन साइज के होते हैं। एंड हेंस बहुत सारे एडवांटेजेस है ये कोएक्सियल केबल के। ओके, देन नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स। यस, अब ये जो आपको सामने दिख रहा है राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको, ये आपने कभी ना कभी तो ऐसे मेले में वगैरह देखा रहेगा, जत्रेमध्ये वगैरे बघितलं असेल असलं, है ना। शो पीस के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा। एंड वो शो पीस घर पे लाके आप वो ऑन कर देते हो तो यू कैन सी इलेक्ट्रिसिटी जब आप स्टार्ट कर देते हो तो उसमें से लाइट निकल के ऊपर आता है ना। एंड फिर आगे का जो टिप दिख रहा है उधर से ऐसे लाइट ट्रांसमिट होता है। सो दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज नोन एज अ फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ ये थर्ड कैटेगरी है। सो इट इज़ बेसिकली अ थिन थ्रेड ऑफ ग्लास that transmits lively beams of light rather than electric current। सो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जगह पे हम लोग क्या पास करते हैं, द बीम्स ऑफ लाइट। एंड एज वी ऑल नो कि लाइट का जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो फास्टर है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डेफिनेटली फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैन कैरी द डेटा एट हाइयर स्पीड। सो जहाँ पे फास्टर डेटा ट्रांसमिशन आपको करना है, लॉन्गर डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करना है, इन सच केसेस वी यूज़ दिस फाइबर ऑप्टिक्स। नाउ ऑब्वियसली अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, यस दैट इज़ द एक्चुअल फाइबर ऑप्टिक्स विच वी यूज़। सो यू कैन सी दे आर अरेंज इन बंडल्स called as a optical cables, and they are used to transmit the light signals over longer distance। so सबसे ज़्यादा अगर advantageous point अगर आप बोलोगे ना तो they are basically used for what we can call it as longer distance के लिए यूज़ किए जाते हैं। so nowadays it supports speed more than say 2 Gbps। तो 2 GB डेटा पर सेकेंड सेंड करने के लिए ऐसे केबल्स आप यूज़ करते हो। सो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर यूज फॉर मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल आप अभी इंटरनेट घर पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जस्ट जस्ट डू नॉट थिंक दैट कि आपके घर पे वाईफाई है। ऐसे सोचो कि आपके पास आपने फिज़िकल कनेक्शन लिया है इंटरनेट का। सो ऑब्वियसली आपके घर पे जो इंटरनेट है, वो जो इंटरनेट होता है ना उसके लिए आप ना जो मीडिया जो वायर यूज़ करते हो दैट इज़ नोन एज ए ट्विस्टेड पेयर, और एल्स यू कैन यूज़ कोएक्सियल केबल। ये दो ऑप्शंस होते हैं। बट जब देखो आपको इंटरनेट कनेक्शन देने वाला कौन है, तो आपके एरिया का जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसको हम बोलते हैं आईएसपी, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये ऑब्वियसली कहीं से तो वो सर्विस लेता रहेगा। दैट मीन्स आपके एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला, सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो होता है उस एरिया में जहाँ पे इंटरनेट है आपके पास, आपके बिल्डिंग को अगर एक बंदा इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो वी कैन कॉल इट एज दैट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो वो एक ही बिल्डिंग के लिए रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू द, देखो वो भी तो बंदा कहाँ से तो इंटरनेट का सर्विस लेता रहेगा एंड वो आपको पास करता रहेगा। दैट मीन्स कैन आई से कि वो जो जहाँ से ले रहा है तो वहाँ पे तो व्हाट वी कैन कॉल इट एज ऐसा जो भी नेटवर्किंग सिस्टम है वो तो बहुत बड़ा हो गया ना। एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज आइदर वैन और मैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जहाँ पे सेम गोज़ फॉर केबलिंग सिस्टम ऑल्सो। हम केबल टीवी घर पे देखते हैं, यस डिश टीवी का छोड़ दो, मैं केबल टीवी का बात कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देर, बहुत सारे केबल प्रोवाइडर्स आर देर, हर एक एरिया में अलग अलग होते हैं। अब ये केबल टीवी जो है इसके जो व्हाट वी कैन कॉल सिग्नल्स जो है वो किसी एक जगह से ही आते रहेंगे ना, क्या 10 जगह अलग अलग रहेंगे। तो सिग्नल्स एक जगह पे आके वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर फिर कुछ केबल वाले रहेंगे, उनको फिर वो सिग्नल्स पास करते हैं। तो एट द फर्स्ट एंड
जहाँ पे ये सिग्नल्स जहाँ पे फास्टर रेट पे एंड लार्ज क्वांटिटी में जब आपको सेंड करना है, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वी यूज़ दिस टाइप ऑफ केबल, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स। क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो है ये लॉन्गर डिस्टेंस पे अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ केबल्स। एंड अगर आपको स्पीडी डेटा ट्रांसफ़र करना है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस फाइबर ऑप्टिक्स। सो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स, but obviously it is very very expensive, as you can see disadvantage में दिया है ये point, that is it is very expensive। ये आप घर पे इम्प्लीमेंट करने का सोच भी नहीं सकते, इतना महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड फॉर दैट रीज़न हम अपने घर पे जो भी वायरिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर। Okay, but yes, definitely some of the advantages are there, that is we can carry signals with much less energy। ठीक है, these are the cables which are much lighter and thinner because यहाँ पे कॉपर केबल्स नहीं, यहाँ पे हम ना ग्लास केबल्स यूज़ कर रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर, सो ग्लास विल बी देयर जिसके अंदर से लाइट ट्रांसमिट होता है। it supports for longer distance and yes it supports for very high speed network communication। so these are some of the advantages and disadvantages में एक ही याद रखो, that is it is very expensive। और एक अगर याद रखना है तो you can call it as कि इसका जो implementation है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ना एक छोटे वायर के अंदर एज यू कैन सी है, यहाँ पे तो आपको बहुत कम दिख रहे हैं लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे एक वायर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे केबल्स आपको मिलेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से एक छोटे फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कुछ डैमेज है, अगर डैमेज हुआ भी तो आपने कभी तो ये देखा रहेगा, आई होप सो कि आपके घर में या घर के बाजू में वगैरह आपके एरिया में कहीं पे तो खड्डा खोद दिया है एंड वहाँ पे कुछ MTNL वाले या फिर कुछ ये लाइंस वाले ना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा कि बंडल बंडल एक बंडल के अंदर मल्टीपल वायर्स आर देयर, बहुत सारे वायर्स होते हैं, ऐसा कभी तो आपने देखा रहेगा। अब उस वायर्स में से जिसमें डैमेज हुआ है उसको फाइंड आउट करना यही पहला बड़ा टास्क होता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू manage such particular such what we can say cables। सो ये तीनों जो केबल्स हमने आज देखे, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, तीनों के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड बिकॉज ऑफ दोज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एप्लीकेशंस भी अलग अलग है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कि ये यूज़ नहीं करते, इसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा है इसलिए इसका यूज़ नहीं, हर एक का यूज़ किया जाता है उसके लेवल पे। but out of these three, as you can see, if we talk about the speed, तो स्पीड के बारे में अगर हम बोलेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स इज़ एट द हाईएस्ट प्लेस। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्राइस इज़ टू मच, बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, सो वी कैन नॉट यूज़। ठीक है, सो कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर ये नॉर्मली छोटे एरिया के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, वेयर एज फाइबर ऑप्टिक्स वी यूज़ फॉर मैन और वैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सो आई होप ये जो आपको गाइडेड मीडिया ये कंसेप्ट समझा रहेगा। क्विकली वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसी का कंटिन्यूशन, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया। सो गाइडेड मीडिया के साथ अभी वायर्ड वाला टेक्नोलॉजी तो देखा, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनगाइडेड मीडिया, दैट इज़ जहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन हम करेंगे। सो वायरलेस ट्रांसमिशन का बात आता है तो सबसे पहला आता है दैट इज़ अबाउट द रेडियो ट्रांसमिशन। नाउ एज यू कैन सी, अब रेडियो ट्रांसमिशन में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे फेमस एग्जांपल इज़ दैट इज़ अबाउट द FM। सो आपको सबको मालूम रहेगा FM AM जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो रेडियो बोलते हैं उसको हम रेडियो FM। सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वन डिवाइस इज़ देयर दैट इज़ रेडियो एंड उसको उसमें आप फिर ये FM चैनल्स जो आप सुनते हो तो वो कैसे आप कैप्चर करते हो उनके सिग्नल्स, तो ऑब्वियसली आप वेव्स, जो रेडियो चैनल से जो वेव्स आते हैं एयर में होते हैं वो वेव्स, उन वेव्स को आप कैप्चर करते हो विथ योर डिवाइस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर चैनल। सो इन रेडियो ट्रांसमिशन अ रेडिएटिंग एंटीना
is used to convert a time varying electric current into electromagnetic wave. So just keep in mind, यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन में इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी यूज़, इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड these particular waves will be transferred through air or space. So air और space में ये waves होते हैं. So wherever a device will be there and the antenna of that particular device will be able to capture that waves, then you will get the signal and you can listen to that particular, फिर FM का जो भी चैनल रहेगा या AM जो रहेगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको सुन सकते हो. सो ये एक है. अगर आपने ना, आई गेस आपने कभी ट्रैवलिंग किया है, मे बी आप ट्रेन से ट्रैवल किया है या फिर बस से ट्रैवल किया है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आजकल के ज़माने में तो ठीक है, चलो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वही हम लोग सुनते हैं, प्रेफर करते हैं मोस्टली वाइल ट्रैवलिंग. बट अगर कभी आपने चेक किया रहेगा या फिर कभी एक्सपीरियंस किया रहेगा, दैट इज़ एफएम का, या नहीं भी किया रहेगा तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली करना है. जब आप लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना, तो यहाँ से जब निकलेंगे, मुंबई से जब निकलोगे ना, तो एफएम लगाना. सो जब तक आप पनवेल तक हो या फिर आप कसारा तक हो, तो वहाँ तक ना आपको एफएम प्रॉपरली सुनाई देगा. इवन आप बाय बस भी ट्रैवल कर रहे हो तो पनवेल के आगे या पनवेल से और भी थोड़ा सा आगे जहाँ पे एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है ना, तो और थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तब तक ना आपको वो मुंबई का जो एफएम चैनल है वो आपको सुनाई देता है. ठीक है. बट वंस यू एंटर द जोन जहाँ पे जिससे आगे, मतलब पूना तो बहुत दूर है, बट स्टिल एज वी नो कि दिस पर्टिकुलर वेव्स आर देयर इन स्पेस और इन एयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, जब आप पुणे के नज़दीक जाते हो तो व्हाट यू विल एक्सपीरियंस इज कि पूना का जो एफएम है उसके भी वेव्स तो वहाँ पे एयर में रहेंगे, मुंबई के भी, मुंबई एफएम है तो उसके भी वेव्स वहाँ पे रहेंगे एयर में. सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट यू विल रियलाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट ना लोनावला के आसपास का एरिया. तो जब उस एरिया में एंड आप पुणे की तरफ जा रहे हो तो व्हाट यू विल एक्सपीरियंस डेफिनेटली कि आपको ना कभी कभी मुंबई एफएम का सिग्नल आप कैप्चर करोगे तो आपको वहाँ से गाना सुनाई देगा, एंड सडनली आपको पूना एफएम का ये आएगा, उसी इस पे सिग्नल रिसीव होगा. तो दूसरा, तो कभी कभी आप ऐसे एक्सपीरियंस करोगे कि आप गाना सुनते वक्त या जो भी आप सुन रहे हो, तो कभी मुंबई का सुन रहे हो, कभी पूना का सुन रहे हो, कभी मुंबई का, कभी पूना का. सो ये मिक्स हो जाते हैं वेव्स, एंड दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज वी हैव इन केस ऑफ दिस रेडियो ट्रांसमिशन, बिकॉज वी कैनॉट कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग. क्योंकि आप सिर्फ डिवाइस से क्या कर सकते हो, वो जो वेव्स है उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, but we cannot control anything regarding those particular transmission. So this is the only disadvantage this radio transmission have. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ अबाउट द इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ. ये तो आप घर पे ही यूज़ करते हो, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. आज आप देख सकते हो दैट इज़ जो रिमोट हम लोग यूज़ करते हो टीवी ऑपरेट करने के लिए, तो उसमें इंफ्रारेड होता है. इवन ब्लूटूथ इज़ देयर, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से भी हम लोग काम करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट यू नो. सो यहाँ पे वायरलेस ही होता है ना, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, टीवी को ऑन कर रहे हो या फिर ब्लूटूथ का यूज़ करके कुछ डेटा सेंड कर रहे हो, सो वो वायरलेस हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर फॉर अनगाइडेड मीडिया. Next one, and this is the most important one, that is about the communication satellites. So here the data can be communicated using satellites which are installed high in the sky. So यहाँ पे होता कैसे है वर्किंग, सो यू कैन सी ग्राउंड पे एक्चुअली इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट. ऑब्वियसली हाई इन द स्काई देयर विल बी सैटेलाइट, जो सैटेलाइट रहेंगे उस सैटेलाइट तक हमें पहले सिग्नल्स छोड़ने पड़ते हैं. सो यू कैन सी स्टेप नंबर 1, जो ग्राउंड इक्विपमेंट्स है दे विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट फर्स्ट. सैटेलाइट पे सिग्नल जाने के बाद द सैटेलाइट विल एम्प्लीफाई दोज पर्टिकुलर इनकमिंग सिग्नल एंड दे विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज सिग्नल.
एंड वो सिग्नल फिर से सेंड किए जाते हैं टू द व्हाट वी कैन से इक्विपमेंट्स विच आर देयर ऑन द अर्थ। ग्राउंड पे जो है इक्विपमेंट्स वहाँ पे ही सेंड किए जाएंगे। जस्ट द थिंग इज उनको एम्पलीफाई करके उनका फ्रिक्वेंसी चेंज करके उनको फिर सेंड किया जाएगा। एंड देन दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स एज यू कैन सी वो एंटीना जैसे जो दिख रहा है, these type of equipments will accept those particular signals and then they will transmit that signals to the ground equipment। तो ऐसे कम्युनिकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सो यू कैन सी यहाँ पे वायर तो यूज़ नहीं कर रहे एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। So if we talk about the distance, yes, definitely we can have these particular type of media जहाँ पे आप लॉन्गर डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आप अनगाइडेड मीडिया डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इट ऑल्सो डज़ नॉट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन ऑफ केबल, क्योंकि वायरलेस है तो केबलिंग का ज़रूरत नहीं है आपको। केबल वगैरह उसका झंझट, कभी कभी देखो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो वो उनके कनेक्शन में बहुत सारे केबल्स लगते हैं, तो केबल केबल वो कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर, है ना, फिजिकली। सो यहाँ पे वाईफाई में डज नॉट रिक्वायर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स एंड येस इट कैन ट्रांसफर डेटा विथ वेरी हाई स्पीड। so these are the advantage of unguided media, but along with that some disadvantages are there। तो उसमें से सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हम लोग अभी आज के इसमें वेदर में फेस करते हैं, ज़्यादा बारिश रहेगा तो क्या होता है, सो ट्रांसमिशन कैन गो डाउन इन बैड वेदर। ज़्यादा बारिश आ रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब है, सो ऑब्वियसली सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे। तो सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो हाउ यू कैन वॉच द टीवी और हाउ यू कैन डू एनी वर्क। सो यहाँ पे जब बैड वेदर रहेगा तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा उससे। then obviously manufacturing cost is very high of satellite। so जहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करना है तो सैटेलाइट यू कैन नॉट है ना बेयर ना कॉस्ट, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है लॉन्चिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट वी कैन नॉट हैंडल। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ डिवाइसेस इन केस ऑफ इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ। जब आप इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ यूज़ करोगे तो डिवाइसेस शुड बी क्लोजर। घर में टीवी है, टीवी ऑन करना है तो रिमोट लेके आपको सामने बैठना है। आप ऐसे नहीं है कि रिमोट आपने आप लेके घूम रहे हो इधर उधर एंड ऑपरेट कर रहे हो एंड टीवी ऑपरेट हो रहा है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू नीड टू सिट in front of that particular device, so you should be closer in case of such technology। so these are some of the advantages of disadvantages of unguided media। so I hope आपको समझा रहेगा। yes, आज का जो टॉपिक हमने किया दैट इज़ अबाउट गाइडेड अनगाइडेड मीडिया। यस, क्विकली गिव द कंफर्मेशन। बोलो जल्दी। ओके चलो, सो क्विकली वी विल टेक द अटेंडेंस। आज का डेट क्या है, 26। चलो, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जस्ट वेट बेटा, 3 के बाद 12 21 क्यों इतना घाई है क्या बेटा? हाँ 53 मैंने क्या बोला है, बार बार बोलने के लिए मत लगाओ। ओके 7 ठीक है, ओके आपने यस बोला है, ओके ओके चलो 10 9 ओके 6 भी है 11 भी है, ओके ठीक है 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके 50। अभी देखो ये 50 हो गया, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डायरेक्ट 9, चलो। 8 है, 9 है, 8 9, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 21 24 हो गया, 26 हो गया, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 35 34, okay, 38 39 40 41 42, okay, 41 42 43 44 43 हो गया, 45 46 Chinmay, okay. So Khushi and Reena is not there, no? Yes, Khushi is also there. Khushi and 38. Reena is not there? No, I guess. 138 38 ना, 38 का लगा दिया है बेटा। चलो, थैंक यू एवरीवन।